Good evening, friends. Let's come to the biology classes of class 11 CBSE board. My today's topic is protozoan protista and the chapter remains the same, that is biological classification. First of all, we know what is protozoan protista, what are their general characteristics and what are their classification. Then we go one by one into the different types of protozoan protista. So, protozoa, proto means first, zoon means animal. Protozoa were first studied by Leeuwenhoek. Were first studied by Leeuwenhoek in 1677. In 1677. The name protozoa, the name protozoa was coined by Goldfuss. The name protozoa was coined by Goldfuss in 1870. The branch of biology which deals with protozoa are called protozoology. The branch of biology which deals with protozoan are called protozoology. Okay, the branch of biology which deals with protozoa are called protozoology. Now let's come to the characteristics, that is general characters. Characteristics. First, it may be aquatic, terrestrial, free living or parasitic. It may be aquatic, terrestrial, free living or parasites or parasite. Okay, now parasite forms are available in the body of human and animal because it causes disease. Parasitic forms cause diseases in human and animals. जैसे प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा है and it cause malaria. Trypanosoma is a protozoan protista and it cause sleeping sickness. Leishmania is a protozoan protista and it cause kala jar. Parasitic form cause disease in human and animal. Now second point is these are small, microscopic. These are small, microscopic, okay, with varied forms. Next, the body is covered by a delicate membrane, firm pellicle or calcareous or siliceous cell. The body is covered by delicate membrane
firm, pellicle और calcareous और siliceous cell। ठीक है, यानी इसका जो बॉडी एनिमल है, तो बॉडी जो है इसका कवर होगा डेलिकेट मेम्ब्रेन से, पेलिकल से, कैलकेरियस या सिलिशियस सेल से। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, बॉडी सिमेट्री। इट shows bilateral और रेडियल सिमेट्री। जब किसी एक प्लेन से बॉडी दो इक्वल हाफ में कटेगा, डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। और जब किसी भी प्लेन से बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री में भी बायलैटरल और रेडियल। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट। इट shows molecular or protoplasmic level of body organization. It shows molecular or protoplasmic level of body organization. Okay, it shows molecular और प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ, लोकोमोशन। लोकोमोशन इज बाय आइदर सीलिया और फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया। लोकोमोशन इज बाय आइदर सीलिया और फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया। ठीक है, नाउ न्यूक्लियस। 1 to several nuclei, 1 to several nuclei, 1 to several nuclei are present इन प्रोटोजोआ। एक से लेके सेवरल न्यूक्लियाई मतलब मोर देन वन और मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मेनली होलोजोइक, सम आर सैप्रोबिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन is holozoic, that is taking complete food into the mouth, but some are saprobic, some are saprobic। ठीक है, ये हो गया 7th। अब इसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जनरली परफॉर्म by body surface because all these protista are unicellular, but parasitic form perform anaerobic respiration। ठीक है, तो लोकोमोशन किससे होता है? सीलिया, फ्लैजेला या स्यूडोपोडिया। न्यूक्लियाई यूनि, बाई या मल्टी न्यूक्लिएट, कोई भी कंडीशन हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली होलोजोइक है, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसा है जो सैप्रोबिक है, मींस दे आर फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक पार्ट्स। Okay, now 8, respiration performs by general body surface, लेकिन लिखेंगे पैरासाइटिक फॉर्म्स। पैरासाइटिक फॉर्म्स परफॉर्म anaerobic respiration, perform
anaerobic respiration. Next, excretion occur through general body surface, but in some excretion may also occur through contractile vacuole. Excretion occurs through, फिर वही होगा जैसे रिस्पिरेशन हो रहा था, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी surface, but in some it occurs through, but in some it occurs through contractile vacuole. और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल वो क्या है, वो है तुम्हारा एमोनिया. ओके, लिखेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट इज एमोनिया. मेटाबॉलिक वेस्ट इज एमोनिया. मेटाबॉलिक वेस्ट इज ammonia. Now, excess of water is passed out by one or more contractile vacuole. Excess of water is passed out by one or more contractile vacuole. And finally, asexual reproduction takes place by binary fission, multiple fission or budding. Asexual reproduction takes place by binary fission or multiple fission और budding. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होगा, सिनगैमी एंड कंजुगेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स place by syngamy और conjugation. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तुम्हारा सिनगैमी या कंजुगेशन से होगा, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन या बडिंग से होगा. नाउ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन किसका? प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा का. प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा आर classified into four types. Protozoan protista are classified into four types. That is, first, Mastigophora. Mastigophora means Jew-flagellate. Second, Sarcodine. थर्ड, सर्कोडाइन के पास स्पोरोजोआ. एंड द फोर्थ इज सिलिएटा. इसमें पैरामीशियम आएगा. तो मैस्टिगोफोरा, सर्कोडाइना, स्पोरोजोआ एंड सिलिएटा are the four types of protozoan protista. So today, first of all, we go through Mastigophora, that is Jew flagellates.
ठीक है, सबसे पहले ग्रुप 1 दैट इज मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा का दूसरा नाम जू फ्लैजिलेट्स। द सेकेंड नेम इज और अनदर नेम इज जू फ्लैजिलेट्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट, it may be free living, aquatic, parasitic, commensal or symbionts. It may be free living, aquatic, free living, aquatic, पैरासाइटिक, कमेंसल्स और सिम्बायंट्स, मतलब वो दूसरे के साथ एसोसिएशन में भी रह सकता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, दिस मैस्टिगोफोरा आर जनरली यूनिन्यूक्लिएट, ओकेजनली मल्टीन्यूक्लिएट। दीज आर जनरली uninucleate and occasionally multinucleate. Okay, next, their body is covered by, their body is covered by firm pellicle, firm pellicle। तो बॉडी कवरिंग क्या है? फर्म पेलिकल। बेसिकली दे आर यूनिन्यूक्लिएट, ओकेजनली मल्टीन्यूक्लिएट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? इट पोजेस फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, इट पोजेस फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। इसके पास क्या है? फ्लैजेला है फॉर लोकोमोशन। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? एक एग्जाम्पल तो है ट्राइकोनिम्फा और लोफोमोनस विच इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स एंड वुड रॉचेस, जो कि तुम्हारा एग्जाम्पल है सिम्बायंट्स का। ठीक है, एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। एग्जाम्पल क्या होगा? फर्स्ट एग्जाम्पल ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनस are found in the intestine of termites and wood roaches, termites and wood roaches respectively। ठीक है, ये कौन सा तरीका है? सिम्बायंट्स, सिम्बायोटिक फॉर्म। ठीक है, फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स एंड वुड रॉचेस। अब आ जाओ सेकेंड में, पैरासाइटिक फॉर्म। पैरासाइटिक फॉर्म, पैरासाइटिक फॉर्म में सबसे पहला है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, GAMBIENCE, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ये जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है, ये क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस, फर्स्ट। सेकेंड, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के बाद है लेशमेनिया डोनोवियन, लेशमेनिया डोनोवी। ठीक है, लेशमेनिया जो है ये कॉज करता है काला जर,
क्या कॉज करता है? काला जर। काला जर, इसको डमडम फीवर भी बोलते हैं, और डमडम फीवर, डमडम फीवर। तीसरा है जियार्डियासिस या जियार्डिया इंटेस्टिनलिस, जियार्डिया इंटेस्टिनलिस। इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये कॉमनली क्या कॉज करता है? जियार्डिया, ठीक है, या जियार्डियासिस, कॉमनली कॉल्ड क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है। अब ये दोनों के बारे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस और स्पेशली नीट सिलेबस ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस और लिस्मेनिया डोनोवी के बारे में हमें पढ़ना है। तो बहुत ही इजी है, फ्री लिविंग है, बेसिकली यूनिन्यूक्लिएट है, बॉडी में फर्म पेलिकल का कवरिंग है, और क्योंकि ये जू फ्लैजेलेटा भी इसका दूसरा नाम है, इट पोजेस फ्लैजेला। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेशमेनिया डोनोवी। लेशमेनिया डोनोवी, ठीक है। दिस इज द जीनस एंड दिस इज द स्पीसीज, नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर सर विलियम लेशमैन एंड डोनोवन। नेम्ड आफ्टर its discoverer Sir William Leishmanian, Sir William Leishman and Donovan। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कालाजर का दूसरा नाम है ब्लैक सिकनेस। काला मतलब होता है काला, समझिए, ठीक है। ब्लैक सिकनेस या जिसको हम लोग डमडम फीवर भी एक नाम से बोलते हैं, ठीक है। कालाजर मीन्स ब्लैक सिकनेस, most common in East India, most common in East India, including parts of Africa and America, parts of Africa and America। ये हो गया कालाजर। कहाँ पे पाया जाता है? मोस्ट कॉमन कहाँ पे है? ईस्ट इंडिया, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड अमेरिका। नेक्स्ट, द फीवर सिम्टम्स क्या होगा इसका? सिम्टम्स, फीवर इज कंटिन्यूअस। फीवर क्या है? कंटिन्यूअस है, एंड इज accompanied by, और इसके साथ कौन है? and is accompanied by anemia, enlargement of liver and spleen। फीवर इसमें कंटिन्यूअस होगा, उसके साथ साथ एनीमिया एंड इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है। अब जो इसको ट्रांसफर करता है, जो इसका वेक्टर है, हु इज द कैरियर, इज कॉल्ड फ्लीबोट्यूमस आर्जेंटिपिस, जो इसका कॉमन नेम है सैंड फ्लाई। इट इज ट्रांसमिटेड by
सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम फ्लीबोटिमस आर्जेंटिपिस। फ्लीबोटिमस या फ्लीबोटिमस आर्जेंटिपिस, आर्जेंटिपिस या आर्जेंटाइप्स। ठीक है, ये सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब डॉग्स एंड कैट इसका फंक्शनल रिजर्वायर है। डॉग्स एंड कैट्स आर फंक्शनल रिजर्वायर। इसका मेन रिजर्वायर कौन है? डॉग्स एंड कैट्स। नेक्स्ट, द पैरासाइट लिव इनसाइड द सेल ऑफ लीवर, स्प्लीन, lymph gland and bone marrow. The parasite means Leishmania donovi. The parasite lives inside the cells of liver, spleen, lymph node and bone marrow. The parasite lives inside the cell of liver, spleen, lymph node and bone marrow. ये हो गया लेशमेनिया डोनोवी का डिटेल। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जो टीज फ्लाई जिसका नाम है ग्लॉसिना पैल्पेलिस, उससे फैलता है और ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे है? ये मोस्ट कॉमनली तुम्हारा वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका में है। तो नेक्स्ट इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस विच कॉज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस BIENC। ये हो गया जेनस और ये हो गया स्पीसीज। फर्स्ट, इट इज अ पैरासाइट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। पैरासाइट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फोर्ड। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फोर्ड इन 1901। Second, it was discovered that it was transmitted by a tasty fly. Frus discovered that it was transmitted by taste fly। क्या नाम है इसका? ग्लॉसिना पैल्पेलिस। थर्ड पॉइंट, इट इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, इट इज फाउंड इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल parts of Africa. It is found in western and central parts of Africa. Next, in human being, the parasite live in the blood plasma. In human being, the parasite
lives in the blood plasma, और ब्लड प्लाज्मा से ये जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में. इन द ब्लड प्लाज्मा लेटर इट इंटर द, कहा जाता है, ब्रेन में जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में. लेटर इट इंटर द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड डैमेजेस द ब्रेन ठीक है. अब क्या होगा, इट मेक द पेशेंट लेथार्जिक एंड अनकॉन्शियस. इट मेक्स द पेशेंट lethargic and unconscious. ठीक है, ये इसका एक सिम्टम्स है, लेथार्जिक एंड अनकॉन्शियसनेस. तो जैसे ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंटर करता है, ये फाइनली ब्रेन को डैमेज करता है. तो सिग्नल सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था फोर्ड के द्वारा. फ्रूस्ट ने डिस्कवर किया कि इसको ट्रांसमिट करता है, या इसका जो वेक्टर है वो है ग्लॉसिना पैल्पेलिस. ये बेसिकली तुम्हारा वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है. इन ह्यूमन बीइंग पैरासाइट सबसे पहले कहाँ पे रहता है, ब्लड प्लाज्मा में, और वहां से फिर ये इंटर करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में और हमारे ब्रेन को डैमेज करता है. पेशेंट इसके कारण लेथार्जिक यानी एकदम सुस्त हो जाता है और अनकॉन्शियस, ठीक है, अचेतन अवस्था में रहता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.